Alright, let's begin with the binomial theorem. Okay, now just look at this thing. Today we will be understanding binomial theorem. What is binomial theorem? Basically, by the name we have got some idea. It's a theorem, right? कोई थ्योरम होगा, है ना? तो इससे हमें पता है. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बाइनोमियल? We have understood in polynomial, we have heard about in class 10. We have heard about monomial also. Monomial one term, bino is related to two something. Bi, two, trinomial, three, polynomial, so many. And so in this we are going to deal with some theorems only. So theorem is very easy only, it's not very difficult chapter. What you have to understand here is, today we are going to study about some identities. Now you was thinking how I'm not knowing what type of identities we have to study. Is it trigonometric identity? No, it's not a trigonometric identity. The normal identity you are studying from class 9th. This identity you have to study. Is it difficult? No. So a square plus b square plus 2ab we know from childhood onwards, right? From class 9th. Okay, so now you was just like, I don't know. Now I'm not making this complex. If I tell you, whoever don't know this identity, now onwards, don't worry, because you are watching this channel, you will learn this identity without ratification. Okay, so how I can do this? Before that, before explaining this, I have to explain something else also. Now tell me, a plus b here, if I write here 0, then what will be the answer? Don't say a, it will be a plus b. No, it will be 1. कैसे? देखो यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी टर्म होता है, उसके ऊपर तुमने 0 की पावर लगाते हो, तो वो टर्म में नहीं आएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, इससे याद रखना. आप आ जाता है दूसरी चीज़ क्या बतानी थी? हाँ, अगर यार a प्लस बी के पावर 1 लगी हो, यहाँ पे 1 लिखा हो, तब क्या करेंगे हम? तब कुछ नहीं करेंगे, डिक्टो कॉपी कर देंगे. वही कॉपी पेस्ट तो हम मास्टर है ना. हाँ, अब यार अगर मैं कुछ और लिख दूँ, कुछ और इन द सेंस, मैंने ये वाला तुम्हें कह दिया कि अब इसका मुझे क्यूब बता दो. आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है. a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. Many of you know, I am not saying, but mostly you will know, most of the people did not know this part. Okay, this theorem you don't know. Anyhow, if I tell you a plus b raised to the power of 4, then did you be able to find? Definitely you will find, because you know that कि अगर हम a क्यूब निकालते हैं, इसका मतलब होता है a इंटू a, है ना. अब इसको हमने निकालना है, a की पावर a प्लस 4 b को निकालना है ना, जिसकी पावर 4 है. तो यानी कि 4 बार हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हाँ, कर देते हैं. a प्लस बी इंटू a प्लस बी. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इस प्रकार आपके पास ये कुछ आंसर विजुअल होगा. बट इज़ इट ईजी टू रिमेंबर दिस मच? डेफिनेटली नॉट. नाउ इफ आई आस्क यू a प्लस b raised to the power of 6, now how much times you will do this same thing? It is very very difficult to do this thing, right? फिर इसको हमें दोबारा लिखें, फिर मल्टीप्लाई में 6 बार लिखना इज़ वेरी वेरी टाइम टेकिंग, एंड टू कैलकुलेट दिस यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम. दैट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? So now the idea comes to be is this:
नो रेक्टिफिकेशन विल बी यूज़फुल। अगर किसी ने हमसे a + b की पावर 16 वाला कुछ पूछ दिया तो हम तो भाई हमें नहीं पता, हम तो छोड़ आएंगे। नहीं, आप छोड़ना बंद, क्योंकि आप विदाउट रेक्टिफिकेशन वी विल गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट बिफोर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिफोर मेकिंग दिस थिंग, this theorem, we have to understand some building point। अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए यार हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमें हर चीज़ की, हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़नी। विदाउट ब्रिक्स तुम सीमेंट काय में लगाओगे, किसी में नहीं ना। तो यार ये ब्रिक्स चाहिए, अब हमें सीमेंट लगाएंगे हम थ्योरम से, ठीक है। पहले तो ब्रिक्स पता चलेंगे, ब्रिक्स यानी कि टूल्स है ना, टूल्स कह सकते हो कुछ, हमारे पास रूल्स है ना, टूल्स रूल्स कुछ भी बोल दो। और इसको बनाने में सीमेंट चाहिए होगी, सीमेंट चिपकाने के लिए रूल्स को कैसे कैसे हमें मतलब बनाना है डिज़ाइनिंग के लिए। अब हम ये चीज़ लेंगे, सीमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग इन द सेंस मतलब ये थ्योरम को डिज़ाइन करने के लिए पहले रूल्स चाहिए होंगे, फिर हम डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करने के बाद हमारे पास आउटपुट आएगा, इन द सेंस हमारे पास बिल्डिंग पूरी की पूरी आ जाएगी, मतलब हमारे पास पूरा थ्योरम आ जाएगा जो हमारे a + b 16 को भी निपटा लेगा। चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे कोई भी पावर हो, ये हो, कुछ भी पावर हमें मिल जाए, हम इसको सॉल्व करेंगे, चाहे 9 भी हो, ठीक है, विथ दिस थ्योरम, ठीक है। तो ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। इन सब की आइडेंटिटीज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टूल्स ऑफ आवर बिल्डिंग। सो व्हाट टूल्स, हाउ वी कैन डू दिस, ओके। सो व्हाट टू मेक ए बिल्डिंग you need to study the tools, means rules. What are the rules? So first rule is to observe. What to observe? Observe what I have wrought here, okay. So I have wrought some pattern. You can see the identities which are familiar to you from many years. This is a cube, b cube, sorry. All right, so we can see some identities written in front of us. Now my main motive is to make this thing by applying these identities. So for making this we need to make a theorem, right? To derive this या a + b की पावर 6 की आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें थ्योरम का निर्माण करने की ज़रूरत है। तो ये थ्योरम कैसे बनेगा? टूल्स से। बिल्डिंग कैसे बनती है? टूल्स से ना। कुछ तो हथौड़े वगैरह चाहिए होंगे, ब्रिक्स वगैरह चाहिए होंगे, है ना। तो चीज़ चाहिए हमें, तो वो चीज़ यहाँ से आएगी। पहले तो हमें टर्म्स को ऑब्ज़र्व करना है। टर्म्स इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, यहाँ पे 0 की +1 में करती जाओ, पावर में 1 को ऐड कर दूँ मैं, सब में 1 को ऐड कर दो हर पावर में, ठीक है। तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो एक टर्म हो गई। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 + 1 2, ये 2 टर्म्स हो गई। 2 + 1 कितना होता है? 3, तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स हो गई। ऐसे यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई, ठीक है। तो वो हमने देख ली। तो इनको हम टर्म्स बोलते हैं, एक एक चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 टर्म, ठीक, 4 टर्म हो गई। अब यार ये तो बात हमें समझ में आ गई कि अगर हम पावर +1 कर दें तो हमारे पास क्या निकलती हैं? टर्म्स निकल आती हैं। ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता? रूल नंबर 2 है कि अब a + b का कैसे हम लिखें। तो a और b को लिखने के लिए, अब ये जैसे a b लिखा है इन्होंने, ये देखो a और ये b, a b कैसे आया ये चीज़ लिखने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल दैट यहाँ पे अगर हम ऑब्ज़र्व करें, मान लो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, सेकंड वाले को, ठीक है। ऑब्ज़र्व करने के लिए हमने दो चीज़ों को चुना है, इसको और इसको,
तुम इसको भी कर सकते हो ऊपर वाले को, पर मैं डिफ़िकल्ट वाले से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने बताया टर्म्स 3 होंगे, ठीक है, इससे हमें पता चल गया। पर यहाँ पे अगर हम ऑब्ज़र्व करें ए के ऊपर, तो ए यहाँ पे हमने ये जितनी पावर थी उतनी ही पावर से लिखा है ना। और इनिशियली ये पावर डिक्रीज़ हो गई। अगर मैं ए पहले 2 था फिर 1 हो गया, और यहाँ पे ए की पावर 0 ही हो गई, यानी कि हमने ए लिखा ही नहीं। और यहाँ पे बी जो था, बी की पावर कैसी थी, 0 थी, और यहाँ पे बी की पावर बढ़ रही है, 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। तो यानी कि हमने देखा कि अगर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो ए की पावर कैसी हो रही है, घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है। और बी की पावर कैसी हो रही है, बी की पावर बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और ये डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जब हम लेफ़्ट टू राइट, ये लेफ़्ट है और ये राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ए की ये कितनी है, 3 की पावर, ए प्लस बी कितना है, 3 है, तो वही सेम लिख दिया हमने, ठीक है, ए की पावर 3। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर घटने लगी, ये 2 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गई। फिर यहाँ पे b की पावर कैसी है, 0 ही है, तो यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, फिर यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ करने लगी, तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है। अब अगर मुझसे कहे कोई कि a प्लस बी की पावर 6 लिख के दिखाओ, तो मुझे पता है 6 + 1 कितना होगा, 7 टर्म्स, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम पहले 7 टर्म्स मुझे पता चल गए मेरे पास आएंगे। फिर मुझे पता है a लेफ़्ट से राइट जाने पे डिक्रीज़ करेगा, तो पहले मैं a की पावर 6 जैसा लिखा है वैसे ही छापा। अब डिक्रीज़ होंगी, a की पावर अब डिक्रीज़ होने लगेगी, a3, a2, फिर a1, फिर इनिशियली a 0 हो जाएगा। फिर अब b की एंट्री होगी, b की पावर 0 होगी, है ना। फिर इंक्रीज़ होती जाएगी, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5, b की पावर 6। तो यहाँ पे देखो 7 टर्म्स आएंगी नहीं आएंगी हमारे पास, हमें 7 चाहिए थी, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये a की पावर 0 जो लिखा है इसको हम हटा देंगे, और जो ये b की पावर 0 लिखा है इसको भी हम हटा देंगे, ठीक है। ये तो और सब चीज़ें सही है, ठीक है, ये प्लस ही है, ठीक। अब एवरीथिंग इज़ राइट, ओके, वी कैन सी द पैटर्न। पर अब प्रॉब्लम क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स लिखे हैं। अब ये नंबर्स आए तो आए कहाँ से, क्वेश्चन ये आता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक होता है रूल। बेसिकली रूल क्या है, मतलब एक ट्रायंगल सी का रूल है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑब्ज़र्व करूँ तो मैं इन सब की पावर्स को एक बार मैं ये लिख लेती हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। इनकी पावर को हम लिख लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है। बस मैंने इतना ही लिखा है। इसको लिखते हैं हम इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स बोलते हैं। अब मैंने क्या करना है, मुझे अब कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है। बहुत सरल है, ज़्यादा मतलब तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अब मुझे 0 का कोएफिशिएंट बताओ क्या होगा। भाई 0 में तो अकेला 1 ही तो बैठा है, तो 1 मार दो, 1 लिख दो, मतलब लिख दिया यार मैंने। अब यहाँ पे ध्यान से फिर से देखो आके, अब क्या चीज़ है ऐसी, यहाँ पे तो यार 2 चीज़ें बैठी हैं, और जिनके कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, ये भी लिख दो यार। बस अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि अब बस मैंने इतना काम कर लिया, तो यानी कि सब मेरा काम हो गया। कैसे हुआ, अब तुम देखो, ये मैंने बस कोएफिशिएंट्स लिख लिए हैं, ठीक है, ए बी के, जैसे मैंने बताया,
ठीक है। अब मुझे ये 2 की पावर के कोएफिशिएंट लिखने हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या आएगा, पहले मैं ऐसे लिखूँगी 1, ऐसे लिखा, फिर इसका 1 ऐसे लिखा। अब मैं इसको फिर से 1 यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ओके। एंड फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम इसको अगेन हम यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 लिख देते, तो उससे अच्छा है हम इसको ऐड कर देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है, और ये हमारा 1 ही रहेगा। अगेन हम ध्यान देंगे, इसको 1 लिख देंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे 3, इसको ऐड कर देंगे 3, फिर ये अकेला 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कोई मुझे 4 दे देता तो 4 के लिए भी 1 लिखते, ये ऐड करते 4 आता, फिर ये ऐड करते 6 आता, फिर ये ऐड करते कितना आता 4, और फिर ये अकेला 1, तो कितना आ जाती, कितनी टर्म्स आ जाती हमारे पास, 1 2 3 4 और 5 टर्म्स के लिए हमारे पास आ जाता, क्योंकि 4 पावर है तो 5 ही टर्म्स होंगे ना। a + b की पावर 4 में हमारे पास अगर हम +1 करेंगे तो 5 ही टर्म्स तो आएंगे, तो 5 पावर्स आ गए, मतलब 5 कोएफिशिएंट्स आ गए कि आगे हम क्या लिखेंगे। पर यार ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, हम यार 6 तक तो ऐसा कर सकते हैं, पर अगर मैं आपको इतना बड़ा नंबर दे दूँ तो क्या आप ऐसे करोगे? डेफिनेटली नॉट। तो ये कब तक हम ट्रायंगल बना के ये सब करेंगे, नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमने बनाया परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्या वाला है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, ये प्रीवियस चैप्टर में। अब हमें क्या यूज़ करना है हम उसकी बात करते हैं। हमें यूज़ करना है कॉम्बिनेशन का, ठीक है। किसका? कॉम्बिनेशन का। क्यों करेंगे? क्योंकि यार ये बना के देखना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 तुम कहाँ तक बनाओगे? 17 तक बनाने में तुम्हारा पूरा पेपर का आधा घंटा समाप्त, तो फिर तुम यही करते रहोगे? नहीं, हमें स्मार्ट वे सीखना है, हमें लॉन्ग वे नहीं सीखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन ने बनाया कॉम्बिनेशन, यानी कि हम यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला NCR फॉर न्यू दिल्ली। एनी हाउ, रिमेंबर द फॉर्मूला n factorial. Okay, now I'm just telling you the formula. What is the formula? n factorial r factorial n minus r factorial. ठीक है, जिनको नहीं पता ये फैक्टोरियल सिंबल होता है, ठीक है, पता होना ही चाहिए, नहीं तो फालतू में इस चैप्टर में तुम आ गए हो अगर नहीं पता है, ठीक है। तो परम्यूटेशन पहले सीख के आना पड़ेगा, अगर वो भी नहीं सीखना है तो सिर्फ कॉम्बिनेशन सीख के आ जाओ। कॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब यार तुम अरेंजमेंट चीज़ों की बात करोगे, अरेंज कराना, उस चीज़ को हम बोल देते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिंपल सा है, बस हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। एन क्या होता है सब हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमें इतना आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक कुछ एग्जाम्पल दे दूँ। मान लो ये मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें क्या करना होगा। हाँ, उससे पहले एक बात और सुन लो, ये NC0 + NC1 इज़ इक्वल्स टू क्या, NCN इज़ इक्वल्स टू 1 होगा। कैसे होगा मैं भी बताती हूँ। ये हमारे पास 3 बॉक्स हैं, यानी कि टोटल क्वांटिटी 3 है। अब मैंने कहा कि तुम मुझे 0 बॉक्स सिलेक्ट करके दो, तो तुमने बोला कि ये तो C3 टोटल है, इनको मैं N की जगह लिख देता हूँ और R की जगह आ जाएगा 0, है ना, R की जगह हम 0 लिख देंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, NCR होता है। तो N की जगह मैंने डाला 3,
और सी ऐसे ही, आर की जगह मैंने क्या डाल दिया 0, तो भाई इसका फैक्टोरियल तो 0 ही आ जाएगा आंसर, है ना। तो 0 बेस में मतलब कोई बॉक्स सिलेक्ट ही ना करो, ठीक है। अब मैंने कहा तुम्हें NC1 वेज में मतलब करना है, एक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, तो तुम कितने वेज में कर सकते हो। तुमने कहा कि अगर मुझे 1 वेज में करना है तो मैं 3 C और 1 लिखूँगा, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा 3 × 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल उड़ गया, तो बचा क्या 3 वेज में मैं कर सकता हूँ। अब वही चीज़ मैंने बोल दी तुमसे कि अब तुम्हें इस चीज़ को सिलेक्ट करना है कितने बार, 0 हो गया ना। अब तुम्हें 3 बॉक्स को सिर्फ और सिर्फ 3 बार सिलेक्ट करना है, यानी कि तुम्हारे पास क्वांटिटी 3 ही है, बॉक्स तुम्हारे पास 3 ही है और तुम्हें 3 ही सिलेक्ट करने हैं। तो भाई इसका आंसर ही क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा ना। क्यों, कैसे 1 आ जाएगा। देखो इसको 0 नहीं लिखना, इसको 1 लिखना, ठीक है, अदरवाइज इट्स रॉन्ग, 1 ही आंसर आएगा। मैंने गलती से यहाँ पे 0 लिखा है। हाँ अब फोकस करो, ठीक है, हाँ इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। 3C, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बार सिलेक्ट करना है तो क्या ही आएगा, 1 आ जाएगा ना। कैसे आएगा, 3 फैक्टोरियल और R कितना है 3 - 3 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, so 3 कैंसिल, वी विल गेट 1 ऐसा आवर आंसर, ठीक है। तो इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। हाँ तो अब ये 1 आ गया, तो यानी कि हम कैसे निकालेंगे, हम कॉम्बिनेशन की हेल्प से हमारे कोएफिशिएंट्स को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे कोई भी कोएफिशिएंट्स डालने होंगे वो कैसे लिख लेंगे, हमारी किसकी वजह से, कॉम्बिनेशन की। अदरवाइज ऐसे भी निकल सकते हैं, बट इट इज़ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस। अब मैंने ब्रह्मास्त्र सिखा दिया, सब सिखा दिया, कब हम क्वेश्चन पे उतरेंगे। क्वेश्चन पे हम उससे उतरने ही वाले हैं, उससे पहले ये एक फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ लो, बस समझना है, ठीक है, कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। मैंने अभी कॉम्बिनेशन बताया, उसको अप्लाई कैसे करना है ये बताएगा। कभी भी हमें ये ऐसी कोई टर्म आ जाए, ठीक है, लिखने के लिए, तब हमें क्या करना है, हमें बेसिक, हमें ये ए दिख रहा है, ए को ऐसे ही लिख देना है, ए की पावर जो यहाँ पे लिखी है वही लिख देनी है, और ये कैसा घटता जाएगा ना, तो n-1 n-2 हो गया, फिर यहाँ पे तो यार 1 हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। इतना मतलब ये डैश कर दिया कि जहाँ तक लिखना हो वहाँ तक, तो ये एंड में 1 हो जाता है, ए की पावर कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, और यहाँ पे ए की पावर कैसी हो गई, 0 हो गई। तो यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू लिखी ही नहीं गई है, ठीक। इतना हमने समझ लिया ए के बारे में। अब इसको साफ कर दो। बी में क्या था, बी में यहाँ पे तो स्टार्टिंग में बिल्कुल लिखा ही नहीं जाएगा, क्योंकि बी की पावर 0 मानी है हमने। अब यहाँ पे बी की पावर बढ़ेगी, है ना, तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, ऐसे ही 3 हो गया, है ना, 4 हो गया, ऐसे मान लो, ठीक है, जो कुछ लिखा होगा। फिर एट द एंड क्या होगा, ये बी की पावर ऑफकोर्स हमारी बढ़ेगी, पर तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि बी की पावर n-1 क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है, अगर मैं इसको राइट टू लेफ़्ट वे में देखूं, ठीक है, राइट टू लेफ़्ट वे में देखें तो पावर कैसी हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे डॉट डॉट लगे हैं, तब मुझे राइट से लेफ़्ट में देखना है। तो राइट में कितनी है, फुल पावर है, ठीक है, जितनी n की पावर होगी उतनी पावर है, जितनी ये ब्रैकेट में पावर लिखी है उतनी ही पावर यहाँ पे एंड में लिखी है। अब एंड में
ये डिक्रीज हो गई, n-1 हो गई, फिर इसके और आगे जाओगे n-2 हो जाएगी, है ना। ऐसे ऐसे घट रही है। क्या? जब हम राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो इसको ऐसे देखना होगा, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे क्या होगा, NC वाले में यहाँ पे NC 0 है, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर NC-1 हो जाएगा। जैसे बीकी में हो रहा था वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। जो बीकी लिखोगा वहीं ये NCN भी वही चीज़ तुम लिख के आओगे, ठीक है। जो बी में लिखोगे, बी की पावर अगर 2 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे बी की पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, यहाँ पे बी की पावर 0 है तो 0 ही आया है, ठीक है, NC में। तो ये हो गई ये वाली बात, ठीक है। ऐसे ही हम इसको करते हैं। अब क्वेश्चंस करेंगे तो बेटर आइडिया मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग फ्रॉम NCERT ओनली। So 3 question I will do here, and rest 3 means rest exercise you will do as your HW work, ठीक है। कंसेप्ट मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन को मैं करने के लिए आई एम राइटिंग इन माई नॉट एनी नोट पैड एंड ऑल, आई एम गोइंग टू राइट इन माई नोटबुक, so you can see your question carefully and how will I solve, you have to see that. Okay, what we know the formula right now, but हम formula का यूज़ हमने जो ऑब्जर्वेशन करी थी वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है। ये A है, ये B है, मैंने AB के रूप में सीखा है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि ये डिजिट मेरे पास माइनस की है, तो पहले मैं एक क्वेश्चन में प्लस में करा दूँगी, ठीक है। इसको हम प्लस में मान लेंगे। और दूसरे वाले क्वेश्चन जो कि ये वाला है, कौन सा वाला, 2/x माइनस x/2, ठीक है, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। एक सेकंड देखना, यहाँ पे स्क्रीन ही पे देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है ये हम सेम टू सेम करेंगे, बस यहाँ पे प्लस मान लो अभी के लिए, क्योंकि एक तो प्लस का भी क्वेश्चन हो जाने देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फोकस करिए, A और ये B, ठीक है, सिंपल। मुझे फॉर्मूला लगाना है, मुझे पता है A क्या है, मुझे पता है 1 है, ठीक है। 1 की पावर कितनी होगी, 5 हो जाएगी ना, जितना हम लिखते हैं उतना ही, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास B नहीं है तो N की पावर C 0 होगी, क्योंकि मेरे पास B की पावर भी 0 है, ठीक, प्लस N की पावर C 1। अब यहाँ पे 1 की पावर घटेगी क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाने में A की पावर घटती है। अब B की एंट्री होगी, जो कि पावर अब कितनी हो जाएगी, B की पावर इंक्रीज़ होगी 1, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाने में। अब ऐसी N की पावर NC कितना आ जाएगा, NC मत लिखो, यहाँ पे तुम्हें 5 ही लिखना चाहिए, ठीक है, 5 लिख देते हैं, 5, ठीक, 5 ये N ही होता है, ठीक है, इसको हम N बोलते हैं, ठीक है। हाँ, 5C 2 और 1 की पावर और 2x, ये A है, ये B है। A की पावर हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो कैसी घट रही है, 5 4 3। अब यहाँ पे बढ़ेगी 2, क्योंकि ये B है, 1 2 अब आ जाते हैं प्लस 5C3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 की पावर घट जाएगी, 1 2 2x, इसकी पावर कैसी होगी, बढ़ जाएगी, प्लस 5C4 1। यहाँ पे पावर अब घट जाएगी, 1 ही रह जाएगी, ठीक है। और 2x की पावर अब बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक, प्लस 5C5 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है, इस चीज़ को हम लिखेंगे नहीं, तो इसलिए 2x और यहाँ पे 4 है तो पावर बढ़ रही है B की, तो ये 5 हो जाएगा, 4 5, ठीक। अब 5 हो गया, यानी कि हम एंड पे पहुँच गए।
अब टर्म्स को काउंट करो, 5 + 1 यानी कि हमारे पास 6 आने चाहिए टर्म्स। तो 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हो गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इट्स वेरी इजी। 5 की पावर C0 1/5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? 50 यानी कि हमें पता है ये 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा ना, मानते हो मेरी बात? ये चीज़ 1 आएगी, ये कोएफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है, प्लस 5C1 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे तो 1 ही रहना है, ठीक है। यहाँ पे 5 की पावर 16, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं 5C1 को, ऐसे ही मैं 5C2 को भी और 5C3 को भी मैं ऐसे ही सॉल्व करती चली जा रही हूँ, ठीक है। तो 5 1 4 फैक्टोरियल, 5 × 4, 4 से 4 कट, कितना बचा? 5, सॉरी सेकेंड, एक सेकेंड, 5 × 4 × 3 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 कितना होता है? 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। सो 3 से 3 उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल उड़ गया, तो 5 4 से 20, इससे बेटर है तुम 20 और 2 × 1 को खोल लो, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक। 5C3 5 फैक्टोरियल 3, 5 में से 3 गया, कितना? 2, 5 × 4 × 3 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये 3 3 कट है ना। अब इस 2 को खोल लो, 2 × 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 2 से 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, सो 10 आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको भी कर देते हैं, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 4 में से 4 1 है ना, 5 × 4 4 फैक्टोरियल से 4 गया 1, तो 1 फैक्टोरियल तो यार 1 ही होगा ना, तो 5 ही आंसर आ जाएगा। 5C5 भी देख लो एक बार, इसका आंसर 1 ही आएगा, मुझे याद है, 0 और 1 का 1 आता है, ठीक है। अब ये इतना काम हो गया मेरा ये, ठीक है। मैंने फैक्टोरियल निकाल लिए, अब यार आधा तो काम कर लिया हमने। अब इस पे ध्यान दो, 5C1 मुझे पता है इस पे 1 आया है, ये इंटू होता है, पॉइंट मतलब इंटू 1, प्लस ये क्या है? 5C1 5C1 का मतलब क्या होगा? मेरे पास 1 आएगा, ठीक है, जो कि मैंने फैक्टोरियल से निकाला था, ठीक है। सॉरी 5 आएगा, यहाँ पे मैंने 5 निकाला था, 5 × 4 किया था, तो यहाँ पे 4 4 कट हो गया था, तो 5 आया था हमारे पास ये एज ए आंसर। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे 5 लिख देंगे इसकी जगह पे, ठीक है। और इंटू में 1 की पावर 4 1 ही रहेगी, इंटू 2 की पावर 2x की पावर 1 2x रह जाएगी, ठीक। अब प्लस कर लो, अब इस पे ध्यान दो, 5C2 क्या आया था? 10 आया था, तो 10 लिख देंगे, इंटू 1 की पावर कितनी आई थी? 3 यानी कि 1, और यहाँ पे 2x की पावर 2 थी, यानी कि 2x की पावर 2 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ध्यान से देखो, 2x²
टू टू ज़ा फोर, 4x 4, ठीक है। तो 4x की पावर 4, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अगर तुम ऐसे भी नहीं करते तो ऐसे कर लेते, टू टू ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, ये 4 हो जाता, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक। फिर मैं प्लस का मार्क लगाऊंगा। फिर अब क्या होगा, अब बहुत इजी है, 5c3, 5c3 क्या था, मैंने अभी निकाला था, मेरे पास 10 आया था, इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1, 2x क्यूब, 2x क्यूब क्या आ जाएगा, अगेन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, 2x क्यूब का इस हमें बेसिकली 2x क्यूब निकालना है, तो 2x क्यूब कैसे निकालेंगे, वेरी इजी ओनली। सॉरी पीपल, देयर वाज वन मिस्टेक आई हैव डिड, मैंने 2x का स्क्वायर मुझे निकालना था ना उस टाइम पे, तो मैंने अब 2x का क्यूब निकालना था, मैंने गलती से इसका फिर से स्क्वायर निकाल दिया, ऐसे नहीं होगा। सो 2x का स्क्वायर का मतलब हमने 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 288x क्यूब, ठीक है। सो इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। एनी डाउट, इट्स क्लियर राइट नाउ। अब देखो ये हो गया हमारा 10 इंटू 1 प्लस 8x क्यूब, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यही हो गई थी जो मैंने यहाँ पे सही कर लिया है, यहाँ पे आप लोग भी सही कर लेना अगर आपने मेरा देख के किया है, ठीक है। ओके, सो मिस्टेक कैन हैपन। 5c4 क्या हो जाएगा, 5c4 अभी मैंने निकाला था, कितना आया था मेरा, 5 आया था, तो 5 इंटू 1 की पावर कितनी होगी, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2x की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 8 16, तो 16 की पावर x4, ठीक है, प्लस 5 1 ही हो जाएगा, 5c5 है ना, और ये अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है 2x5, जो कि कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो 5 को, 2 इंटू 2 इंटू 16, 16 इंटू 2 दैट इज़ 32, x raised to 5, okay. So this we have did. Now what we can do is we can try to solve it. Now जैसे ये चीज़ें आ रही थी वैसे मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 5 10x प्लस 10 40x स्क्वायर प्लस 10 इंटू 8 80x क्यूब प्लस 5 इंटू 16 x की पावर 4 प्लस 32 x की पावर 5, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हमारे पास आंसर आ गया है। 1 सेकेंड पीपल, तो यहाँ पे 80 लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑलराइट। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन and again we cannot have a time to solve this question, so we will solve it in later video when we will solve extra questions, ठीक है। उस टाइम पे हम ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही, ठीक है। सो थैंक यू पीपल, सो मीटिंग यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।